Ang puilo no norok kulung mas kaliya farok kulung का मेरा एक रिक्वेस्ट है जिसका स्टैंड है उसको रहने दो, जिसका स्टैंड नहीं आप लोग यहाँ आ जाओ तो मैं पब्लिक को भी थोड़ा सा अपना समाजपति को भी देख सकता हूँ। आप लोग यहाँ आ जाओ, जिसका स्टैंड है अब जिनका स्टैंड नहीं है आप लोग यहाँ आके ले सकते हैं। आप लोग यहाँ आके ले मेरा एक आज हौसला भोजन में एक आप सबको एक मैसेज है। देखिए हमारा तिपरासा जो कम्युनिटी है, आप लोग एक बात नहीं समझ पा रहे कि अगर हम लोग एक संग एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते रहेंगे तो हमको बचाने वाला कोई नहीं है। ये इलेक्शन का स्पीच नहीं है। এই জায়গাতে আপনার একটা কথা মনে রাখতেই হবে, তিপরাসা দফা এর কল্যাণ কেউ করতে পারবে না। প্রথমে আপনার নিজেদের আপনার বিচার করতে হবে। থানসা মাত্র পলিটিক্স নয়। আজকে আমি কি দেখে অনেক জায়গাতে কেউ খ্রিস্টান, কেউ হিন্দু, কেউ বুদ্ধিস্ট, কেউ মুসলমান হয়ে কথা বলে, কেউ দেববর্মা, মলসম, ত্রিপুরা, রিয়াং, উচ্চয়, কার্বং, কলয়, অনেক যে সমাজ আছে ওনার নিজের কথা বলে। কেউ আমার তিপরাসা জাতির কথা কেউ বলে না। যে সময় ফেসবুকে আপনি দেখেছেন আমাদের একটা কনস্টেবল ছিল, ওনার উপরে অনেক কথা বলেছে, শব্দ যে বলেছে আমি শুনেছি, আমি দেখেছি। এই সময় সবাই বলেছে আমার দেখো দেববর্মার বিরুদ্ধে কথা বলেছে, এই দেখো আমার তিপরাসার বিরুদ্ধে কিছু কথা বলেছে। যে সময় আক্রমণ হয় সবাই এক হয়ে যায়, যে সময় শান্তি থাকে কেউ একসঙ্গে কথা বলে না। এই সত্য কথা আছে, বুবাগরা থাকবো থাকবে না এই ইম্পর্টেন্ট নয়। নিজের আপনাদের পরিবর্তন করতেই হবে। আমি কি দেখে যে সময় আমাদের যে কনস্টেবলের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলেছিল আমি দেখেছি ফেসবুকে, সবাই বললাম এই তো ক্রাইম আছে, ফেসবুক ইউটিউবে সবাই কথা বললাম। একটা মুরা সিং ছেলে ছিল, উনি মাত্র ওয়ান ম্যান, উনি প্রোটেস্ট করেছে। ফেসবুক ইউটিউবে অনেক লিডার আছে প্রোটেস্ট করে, মাঠে মাত্র একজন ছিল। আর এই লিডার না দেববর্মা ছিল, না জমতিয়া ছিল, না রিয়াং ছিল, না একটা মুরা সিং ছিল। আর যের উপরে আক্রমণ হয়েছে উনি মলসম। কেন কি আগরতলাতে আপনি একটা কথা মনে রাখেন, কেউ রিয়াং নয়, কেউ জমতিয়া নয়, কেউ ত্রিপুরা নয়, কেউ রুপিনী নয়, কেউ রামফল নয়, সবাই বুকুম পাড়া আছে এখানে। আমাদের থিঙ্কিং আছে, এই সোচ
এই আপনি পরিবর্তন না করলে আজ আমাদের কাছে অনেক এমএলএ আছে, এমডিসি আছে, কালকে থাকবে না, এই দিয়ে পরিবর্তন হয় না। এই আন্তরিক পরিবর্তন আপনাদের করতে হবে, বিচার করতেই হবে। বাংলাদেশে অনেক খাগড়াছড়ি হোক, বান্দরবন হোক, চিটাগং হোক, অনেক জায়গাতে আমাদের তিপ্রাসা, আমাদের চাকমা, খাসি, গারো, মণিপুরি, কুকি অনেকজন আছে। ওনার মন্দির নষ্ট হয়েছে, चर्च को अटैक किया गया, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को तोड़ा गया। और আমি ত্রিপুরাতে কি দেখি, উনি খ্রিস্টান, উনি ব্যাপটিস্ট, উনি ক্যাথলিক, আমি হিন্দু, আমি সনাতনী, উনি বুদ্ধিস্ট, আমি মগ, উনি চাকমা, উনি ত্রিপুরা, উনি রিয়াং, আমি কাঞ্চনপুরের রিয়াং আছে, উনি অমরপুরের রিয়াং, আমি কমলপুরে দেববর্মা আছে, আমি দাসপা আছে, উনি বিশ্রামগঞ্জে ত্রিপুরা দেববর্মা আছে, আমি অম্পিরে জনতি আছে, উনি কিলারে জনতি আছে। বাবা, এমন করে কিছু কল্যাণ হবে না, আপনি সব শেষ হয়ে যাবে। এই লিগে আজকাল আমাদের দফা আমাদের রাজ্যের মাইনরিটিতে আছে। আপনাদের थिंकिंग चेंज करते हो। आज का हश्म भोजन, इसका मतलब क्या है? दशमी का मतलब क्या है? अष्टमी का मतलब क्या है? विक्ट्री ओवर गुड ओवर इविल। अच्छाई को आप, अच्छाई का जीत होता है, बुराई हारता है। आज बुराई आपके अंदर है, जो राक्षस है वो आपके अंदर है। वो राक्षस जो आपको ईगो देता है, वो ईवल जो आपको एक दूसरे से लड़ाता है, लालच देता है, अहंकार देता है, और ये अहंकार, ये लालच ही सोसाइटी को, दफा को खत्म करता है। आप लोग समाजपति, आपका दायित्व बनता है, अपनी समाजपति, अपनी ओकरा, अपनी कास्काओ, अपनी चांताई, अपनी चौधरी, আপনার দায়িত্ব আছে আমাদের নিউ জেনারেশন রাইট ডিরেকশন আপনি দেখাতে হবে। আর সত্য কথা আছে, ভাষণ সবাই ভালো দেয়, কেউ প্র্যাকটিস করে না। থানসা, মাত্র থানসা বললে থানসা হয় না। আপনাদের थिंकिंग इवॉल्व करते हैं। और सबसे पहले आप लोग संकल्प लीजिए अपने आप को बदलने की। आज क्षत्रिय समाज ने, आज काउंसिल ऑफ त्रिपुरा होदा ने, आज खनाराम ने यहाँ से आपको उच्च सब बोला है कि हमारा पद्मलीला जमातिया है, जमातिया होदा है, रूपिणी समाज है। आप लोग ने बोला है कि हमारा कस्टमरी लॉ को पास कीजिए। काउंसिल से हमने प्रपोजल भेज दिया, हमारे हाथे तो नয়, আমাদের কাছে যে প্রপোজাল আছে আমি আমাদের এডিসি তো দিয়ে দিয়েছে স্টেট গভর্নমেন্ট। মাত্র একটা প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট হয়েছে
জমা দেওয়া হদা আর 14টা প্রপোজাল রিজেক্ট হয়েছে। কেন রিজেক্ট হয়েছে? ওনাদের অফিসার্স যে তিপ্রাসা নয়, উনি বলে এইভাবে আইন হয় না, এইভাবে আপনাদের সমাজ চলবে না। আমার একই কথা, ये पावर किसने उन लोगों को दिया कि हमारा कस्टमरी लॉ को बदले? ये अधिकार किसने वो ऑफिसर को दिया बोलने के लिए कि तिप्रासा को हमारे जैसा हम बोलेंगे वैसा चलेगा, उनका परंपरा को हम लोग मानते नहीं? किसने वो पावर दिया? हमने दिया, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं। आज कोई नागा को उनका कस्टमरी लॉ बोले आप बदल दो, मानेगा नागा? मानेगा? मीजो को बोलो चेंज करने के लिए, मानेगा? खासी को बोलो, मानेगा? तो तिप्रासा को क्यों इनका पावर मिला? थानसा करो, जमलते को मिल गया तो रियान को बाद में मिलेगा भी, नो प्रॉब्लम। चुबलाई बुद्धू को मिल गया, त्रिपुरा समाज को मिल गया तो रुपिनी को नहीं मिलता तो नो प्रॉब्लम। चाकमा को मिल गया, मोक को नहीं मिलता, नो प्रॉब्लम। कार्बों को मिला, कोलोई को नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। यही करके डिवाइड एंड रूल करके, क्योंकि हम लोग लालची है, हमको सिर्फ अपना बारे सोचना है, अपना दूसरा तिप्रासा के बारे नहीं सोचना। इसके लिए हम लोगों को डिवाइड एंड रूल करके हमारा हर प्रपोजल को रिजेक्ट किया। उनका गलती नहीं है, गलती हमारा कि माइनॉरिटी होने के बाद भी हम लोग एक बात नहीं समझा है कि हम लोग माइनॉरिटी क्यों बना, क्योंकि हम लोग डिवाइडेड था और आज भी वी आर डिवाइडेड। गुबागरा थानसा बोलेगा, गुबागरा के सामने आप लोग थानसा बोलेगा, लेकिन दिल के अंदर से अगर आपके अंदर दिल के अंदर सफाई नहीं है तो नथिंग विल हैपन। अपना थिंकिंग को बदलने का कोशिश कीजिए। मैं जानता हूं इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि नेचर, कैरेक्टर और जबान को आप इतना जल्दी परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, इसके लिए थिंकिंग चाहिए, इसके लिए सोच चाहिए, इसके लिए विजन चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक ही कथा আছে, আপনার তো বয়স হয়ে গেছে, যে আপনার পোলাপান আছে, আপনার মেয়ে, আপনার ছেলে, ওনাদের কি ভবিষ্যৎ হবে? ওনাদের ভবিষ্যৎ থাকবেই না আপনি অ্যাকশন না থাকলে। একটা দরকার আছে, মাত্র একটা বললে একটা হয় না, নিজের অ্যাকশন চেঞ্জ করতে হবে। तो ये रहा आपका कस्टमरी लॉ का। अगर आपको आप लोग बैठकर गुबागरा से बात करता है, बोलता चलिए गुबागरा एक आवाज में कहां भी ऑब्जेक्शन है बताइए, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के साथ हम लोग बैठकर फेस टू फेस बैठकर हम लोग नेगोशिएट करता है तो कुछ मिलेगा। लेकिन हम लोग का नेगोशिएशन क्या है? টাকা, চাকরি, পোস্ট, এই তো আমাদের নেগোসিয়েশন। কেউ আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলে না। বাইরে সবাই
বলে কিনা ঠিক আছে আক্রমণ করতে হবে, চক্রান্ত করতে হবে, আন্দোলন করতে হবে, সামনাসামনি কেউ এই কথা বলে না, আমাদের চাকরি দিয়ে দাও, ট্রান্সফার দিয়ে দাও, এইভাবে করলে আপনাদের কিছু হবে না। हमारे आवेदन আছে, मेरा रिक्वेस्ट है कि जहां जहां में उनका ऑब्जेक्शन है, एडीसी को भी मैं बोलना चाहता हूं, राइटिंग में दीजिए उनका क्या ऑब्जेक्शन है, एक जॉइंट मीटिंग रखिए, एक लॉयर को अच्छा रखिए, और जब हम लोगों का मीटिंग होगा, हम लोग का भी एक लॉयर रहेगा, उनका भी ऑफिसर रहेगा, हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात, इमोशन से नहीं, कानून से, आईन से। आपका दूसरा पॉइंट है कि आपको अगरतला में जमीन चाहिए, काउंसिल ऑफ तिपरासा अकॉर्ड में मेंबर्स, आप लोग प्लीज राइटिंग में, मैं आपका मीटिंग सेटअप करता हूं विद AK मिश्रा दिल्ली में, आप लोगों का जो भी डिमांड है आप लोग फेस टू फेस बन के राइटिंग में ये डिमांड लिखिए, एडीसी भी लिखेगा, मैं भी लिखूंगा। अगर पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है या स्टेट गवर्नमेंट देता है तो 5 घंटा क्यों, हम लोग 10 घंटा जमीन भी आपको ऑफिस के लिए दे सकते हैं, लेकिन पैसा आना पड़ेगा। मुबागरा हवा से तो पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन आप मुबागरा तो आपके संग ही हैं। आप लोग अगर ये महीना मिलना चाहते हैं दिल्ली में तो आप लोग एक टीम बनाइए 5-6 लोगों का, अपना डिमांड उसमें ये डिमांड भी रखिए, और जाकर मैं आपका मीटिंग सेटअप करता हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्ट्री से, और ये बात आप राइटिंग में लिख के दीजिए। उसके बाद विजय रामफल मैं फॉलो अप करूंगा, आप लोगों को राइटिंग में इनको ये देना पड़ेगा। दिल्ली भूल जाता है, हमको उनके पीछे रोज पढ़ना पड़ता है, इतना आसान काम नहीं है नेगोशिएशन। और अगर आप समाजपति बनके अपना दफा के लिए बात करेगा तो मुबागरा आपके लिए मर जाएगा, आपके लिए लड़ जाएगा, लेकिन आपको भी 2 कदम चलना पड़ेगा। ये प्रस्ताव ठीक है? डू यू एग्री? अगर आप लोग एग्री करते हैं तो हाथ उठाओ। आप लोग अपने बीच से 5-6 लोगों को लो और जाकर ये बात दिल्ली में रखो। मैं गारंटी देता हूं कि आपका मीटिंग में मिश्रा जी से करूं। हश्म भोजन मैं हर साल क्यों बुलाता हूं? प्रत्येक साल हमें क्यों अपना निमंत्रण देगा? क्योंकि हम आपको आदर करना चाहते हैं, हम आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। আপনার রাজা আপনার আদর করতে চায়, আমি আপনার আদর না করলে কেউ আপনার আদর করবে না। আমি জানি ইলেকশনের সময় সবাই আপনার নিমন্ত্রণ করবে, সবাই আপনার বাড়িতে যাবে, বীরেন্দ্র আপনার বাড়িতে সবাই ঘুষে যাবে, হদার বাড়িতে সবাই চলে যাবে, আপনার রাঙ্গল পাড়াতে সবাই আসবে, সাংগ্রমা আপনার বাড়িতে সবাই চলে যাবে। ইলেকশন শেষ হয়ে কেউ আপনার আদর করে না। প্রত্যেক সাল আমি আপনার নিমন্ত্রণ দিয়ে পুরো ত্রিপুরাতে দেখাইতে চাই कि আমি আমাদের দফারে আমার সমাজপতিতে আমি আদর করি। আর যে আপনার দিল্লিতে মিটিং হবে আপনার গ্রামে সবাই বলবে আরে আমাদের সমাজপতির সঙ্গে দিল্লি সরকার দেখা করতেছে, হোম মিনিস্ট্রি দেখা করতেছে, ওনার কাছে কিছু তো পাওয়ার হবে, দায়িত্ব তো হবে। আমাদের এমএলএ দেখা করতে পারে না, আমার সমাজপতি দেখা করতে পারে। আমি এই আপনার এই पावर दिखा, हम प्लानिंग किया, हम सोचा है, लेकिन
एक बुबागरा आपको हमेशा अकेला रखेगा। We are divided. We are not. We don't love each other. We fight. इससे कुछ नहीं। अभी विलेज काउंसिल 6 साल से इलेक्शन नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो आप लोग की तरफ से कि गांव में हम लोग का लोग गरीब है, भूखा है, इलेक्शन नहीं हो। यहाँ में मैं हौसलों बुझल, ये तो पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मैं अपना पिताजी का, स्वर्ग पिताजी का कसम खा के बोलता हूँ, सबके सामने, कैमरा के सामने, मैं अपना स्वर्ग पिताजी का कसम खा के बोलता हूँ। मैं भी देख रहा हूँ, अगर हमारा तिपरासा के साथ धोखा हुआ तो मैं ज़्यादा दिन चुप नहीं बैठने वाला हूँ, मैं हट जाऊँगा। और अगर मैंने देखा कि अपने लोग भी थोड़ा स्वार्थ और लालच के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है, तो मैं ना एडीसी में बैठूंगा, ना तिपरा मोथा में बैठूंगा, ना सरकार में बैठूंगा। मैं अगर अपना तिपरासा को हेल्प नहीं कर सकता हूं तो पावर में आकर बैठने से कोई लाभ नहीं। मुझे घुटन है, सफोकेशन। आप लोग आके बोलता है महाराज हमको 1 लाख रुपया दो, हमको 50,000 रुपया दो, हमारा गांव में रास्ता नहीं है, ब्रिक सॉइलिंग करो। मैं बहुत ट्राई करता हूँ, लेकिन जितना भी करता हूँ, अगर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करता, अपना लोग ही हेल्प नहीं करता है, तो मैं क्या करूँ? अगर कल कुछ गलत हो गया तो वो लोग तो अपना पोस्ट हारेगा, अपना एमएलए हारेगा, अपना एमडीसी हारेगा, अपना मंत्री हारेगा। अगर मैं हारा तो मैं तो अपना परिवार का नाम हारा। मेरा पोजीशन दूसरा पॉलिटिशियन जैसा नहीं है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि वी शुड टॉक टू एवरीवन। आईपीएफटी हो, उनसे बात करना चाहिए, एसटी सेल हो, जनजाति मोर्चा हो, एनजीओज हो, सबसे बात करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको उनसे बात करना है जिसके अंदर राजनीति नहीं है, जिसको सिर्फ एक अच्छा कल चाहिए। पॉलिटिक्स बहुत गंदा है, बहुत ही गंदा है। और जो लोग बोलता है कि पॉलिटिक्स गंदा नहीं है, वो लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिशियन को जवाब देना है तो पॉलिटिशियन सिर्फ एक ही आवाज जानता है, यूनिटी, उसी से डरता है। अगर हम लोग यूनाइटेड है तो वी विल बी अ फैक्टर। अगर यूनाइटेड नहीं है तो मेरे बाद मुझे नहीं लगता कि और कोई आवाज उठा सकेगा। फैक्टर बनना पड़ता है। आज समाजपति फैक्टर नहीं है त्रिपुरा में, इसके लिए आपका इज्जत नहीं। महाराजा वीर विक्रम के टाइम में आप लोगों को आदर इज्जत मिलता था, इसके लिए आप लोग अपना गांव में फैक्टर था, इसके लिए आपका वैल्यू था। आज क्योंकि आप लोग एक संग बात नहीं करते, आज त्रिपुरा का नारायण
अगर रांखोल का समाजपति से बात नहीं करेगा, या रूपिनी का चौधरी रूपिनी अगर आप खुदा से बात नहीं करेगा, जब क्षत्रिय समाज कॉलोई से बात नहीं करेगा, अपना फनाराम हम लोग का रियांग लोग 3-3 ग्रुप बन के बटा है, सबसे गरीब है, वन ऑफ द मोस्ट, और गरीब रखने वाला आप लोग का ही डिसीजन है। कितना ऑर्गेनाइजेशंस बनाया है, कितना ग्रुप बनाया है। थोड़ा फायदा 2-3 लीडर को मिल जाएगा, कम्युनिटी नहीं उठेगा अपना ग्रुप। एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, जुडिशियल एग्जाम त्रिपुरा में बांग्ला में हो रहा था, तो मैंने जाके मुख्यमंत्री से बात की और मैंने मुख्यमंत्री को बोला, मुख्यमंत्री जी आप बांग्ला में एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, हमको बांग्ला से कोई आपत्ति नहीं है। कलकत्ता से भी लोग आकर एग्जाम दे रहे हैं बिकॉज बांग्ला है, लेकिन हमारा जो तिपरासा है वो बांग्ला में फेल हो रहा है, आप हमारा लोकल लैंग्वेज में एग्जाम करने दीजिए या ऑल्टरनेटिव इंग्लिश कीजिए। तो हमारा ही एक लीडर ने बोला, नहीं महाराज सिर्फ कॉक बोरक में होना। तो मैंने बोला नहीं, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश भी रखो, क्योंकि बहुत तिपरासा है, दार्लोंग है, रांगलोंग है, चाकमा है, मोग है, रांखोल है, कारबोंग है, बहुत तिपरासा है जो एक लैंग्वेज बात नहीं कर सकते, मीजोस। तो हमको ये गलती नहीं करना चाहिए, जो हमारे साथ अत्याचार हुआ वही अत्याचार हमको अपना माइनॉरिटी ट्राइब के साथ नहीं करना। आज आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट 5 साल के बाद पहला बार जुडिशियल एग्जाम होगा जहां में तिपरासा अपना मदर लैंग्वेज में लिख सकता है या फिर ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में अपना एग्जाम दे सकता है। इसके बाद यूपीएससी में ये करना है, इसके बाद टीपीएससी में करना, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप को। हम लोग ने 50 साल में बहुत एमपी बनाया, बहुत एमडीसीज ईएम्स बनाया, बहुत एमएलएस बनाया, लेकिन हम लोग ने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, अपना अच्छा ऑफिसर्स दिया। अगर सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो पॉलिटिक्स तो ज़रूरी है, लेकिन अच्छा लॉयर्स, अच्छा जजेस, अच्छा आईएएस ऑफिसर्स, अच्छा आईपीएस ऑफिसर्स, अच्छा टीसीएस ऑफिसर्स भी हमको दरकार है। एजुकेशन मैंने बहुत ट्राई किया है अपने काउंसिल में करप्शन को हटाने, बहुत ट्राई, लेकिन जितना भी ट्राई किया हमेशा कुछ ना कुछ रुकावट है। आज हमारे स्कूल में क्लास 8 पास, क्लास 9 पास, क्लास 10 पास टीचर्स हैं जो महीने में 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, बहुत लोग तो अटेंडेंस भी नहीं देते। वो लोग हमारे बच्चे लोगों को शिक्षा दे, उनका सैलरी है 50,000, 60,000, 70,000, और हमारा जो यंग जनरेशन, आपका बच्चा तो जो बीए पास है, एमए पास है, आज वो लोग टीचिंग कर रहा है डॉन बॉस्को में, होली क्रॉस में, प्राइवेट स्कूल्स में, 10,000, 12,000, 15,000। और जो लोग क्लास 9, क्लास 10 पास है, वो लोगों को 70,000, 60,000 का सैलरी। उनको हटाए
तो आंदोलन होगा, यंगस्टर्स को नौकरी दे तो पैसा नहीं है। इसमें मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं सीपीएम, आपको राजनीति करना था तो करो, नो प्रॉब्लम, करो, आपका अधिकार है। पॉलिटिक्स करना था तो यूनिवर्सिटी में करो, लेकिन आप स्कूल में जिसने आपको वोट दिया, आपने उसको नौकरी दिया, आपने स्कूल में राजनीति ला दिया। और आज ऐसे लोगों को नौकरी दिया बिना इंटरव्यू का, बिना रिटन एग्जाम का, ऐसे लोगों को नौकरी दिया जिससे आज आपका ही बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है। क्योंकि अगर आज बच्चा स्कूल में ठीक से शिक्षा नहीं मिलता है तो वो अच्छा कॉलेज नहीं जाएगा, अच्छा कॉलेज नहीं जाएगा तो अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा तो पूरा जिंदगी गरीब रहेगा। अगर आपको पॉलिटिक्स करना था आप यूनिवर्सिटी में करता, नो प्रॉब्लम, आप अपना एक प्रोफेसर को नौकरी दे देता जो आपको वोट कर रहा है। लेकिन स्कूल में आपने ऐसे लोगों को चांस दिया जिससे आज हमारा ही बच्चा का एजुकेशन का क्वालिटी गिर रहा है। मैं चेंज करना चाहता हूं, तो हटाना है तो लोग आंदोलन करेंगे, और नया लाना है तो पैसे देने के लिए ना स्टेट गवर्नमेंट ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक माना है। आप बोलिए आपका मुबाकरा क्या? मैं कुछ बोलूं तो फेसबुक पे कोई लिखता है कि आप लोग अलायंस में है, आपका सरकार है, आपको कुछ करना चाहिए। तो ठीक है, निगोशिएट कर रहा हूं। अगर मुझे लगता है कि मैं अपना लोगों को हेल्प नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसके बारे में भी विचार करूंगा। लेकिन मैं 5 साल गवर्नमेंट में बैठकर खाली हाथ तो नहीं बैठने वाला। अगर मुझे लगेगा कि मैं अपना गरीब लोगों को हेल्प नहीं कर पाता हूँ, अगर मुझे लगेगा कि मुझसे काम नहीं हो रहा है, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मैं पॉलिटिक्स में पैसा कमाने के लिए नहीं आया, और अगर मैं अपने लोगों को पॉलिटिक्स में आकर हेल्प नहीं कर सकता हूँ तो मैं उसको भी छोड़ दूंगा। लेकिन अपना लोगों को छोड़ूंगा नहीं, आपको हेल्प करूंगा। और मैं जानता हूं कि मैं जब ये डिसीजन लूंगा, मेरे संग कुछ नेता लोग आए या ना आए, मेरे संग आप लोग रहेगा। आपका मुबाकरा दिल से बात कर रहा है, ना कागज है सामने, ना कुछ प्रिपरेशन। मैं भी राज परिवार का आदमी हूं, क्षत्रिय हूं, वो नहीं क्रिया, मैं किसी से डरता नहीं। कल मेरे ऊपर कोई केस नहीं फाइल कर सकता कि मैंने करप्शन किया। कल कोई सीबीआई ईडी मेरे ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन मेरे पास एक चीज है, शर्म है, हया है। पब्लिक लाइफ में आने का मेरा एक ही उद्देश्य था, गाड़ी बंगला नहीं, एमएलए का पोस्ट नहीं, एमडीसी का पोस्ट नहीं, अपने लोगों के शक्ल में थोड़ा सा हंसना दिखना चाहिए। लेकिन आई एम डिसअपॉइंटेड। क्या मैं सोचता था और क्या निकला है। अभी तक मैंने आशा छोड़ा नहीं, क्योंकि आपके अंदर भी बहुत लोग अच्छे हैं, और जो हमको नफरत भी करता है, जो मुझे गाली भी बकता है, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं अच्छाई है। I have noticed the goodness in every individual. कोई 100% खराब नहीं होता, कोई 100% गलत नहीं होता। लेकिन मैं आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू ओपनली बोलना चाहता हूं
जो लोग भी महाराजा को, गुबागरा को ट्रैप करने का कोशिश कर रहा है, फंसाने का कोशिश कर रहा है, सबको लगता है कि महाराजा तो फंस गया। महाराजा नहीं फंसा। महाराजा जिस दिन छोड़ेगा और बड़ा बनेगा। लेकिन महाराजा ने भी बहुत चीज समझा है, और मीडिया के सामने, टीवी के सामने बहुत लोग ने मुझे खेला है, बहुत लोग ने मेरा इस्तेमाल किया, और बहुत लोगों ने मुझे गलत सजेशन दिया है। आस्ते आस्ते मैं भी समझ गया हूँ कि ये सब हुआ क्योंकि वो लोग स्वार्थी थे। तो मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। वीरेंद्र ने शास्त्र के बारे में बात की, आप बोला है अच्छा हिंदू बनो। यहाँ में क्रिश्चियंस है, बाइबल ऑल्सो सेज बी अ गुड मैन। यहाँ में बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, चाकमा, मौन। बुद्ध ने भी क्या कहा, अपने आप को सुधारो। तो मैं आज आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं अपने आप को हमेशा सुधारने की कोशिश करता हूँ। तो जिन लोगों को भी मैंने चोट पहुंचाया, जिन लोगों को भी मैंने कुछ कहा है, स्पेशली अपना की तरफ से, मुझे कोई शर्म नहीं है उनको बोलने के लिए कि गलती मुझसे भी हुई होगी। उनसे भी गलती हुआ है, लेकिन मुझसे भी गलती। उनको भी खेला गया, मुझे भी खेला गया। उनका भी इस्तेमाल हुआ, मेरा भी इस्तेमाल। और आज मैं आप सबको यहाँ में बोलना चाहता हूँ, आपका भी इस्तेमाल लोग करेंगे, लेकिन आपको पहले बेनिफिट अपना नहीं, अपना दफा का, अपना कम्युनिटी का। जिस दिन आपको अपना बेनिफिट मिलेगा एज अ कम्युनिटी, हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिवाइड एंड रूल आज भी त्रिपुरा में है, और डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी जिसने भी किया है, वो लोग आराम से बैठे हैं और हम लोगों को खेल रहे हैं। वेदर INPT था विजय बाबू, TUJS था, वेदर NC बाबू था, IPFT था, वेदर पाताल कन्या है या महाराजा है, कहीं ना कहीं हम लोगों का कान भर के हम लोगों को एक संग लड़ाया गया है, क्योंकि अगर हम लोग डिवाइडेड हैं तो फायदा उनका है। एज अ महाराजा मेरे मन के अंदर एक संग फाइट करने का मन है, एक संग के खिलाफ फाइट करने का मन है। और अगर महाराजा क्यों बनता है? उनका दिल बड़ा होना चाहिए, उनका सोच बड़ा होना चाहिए, उनका थिंकिंग बड़ा होना चाहिए, उनके दिल में सबके लिए प्यार होना चाहिए। और अगर मुझसे गलती हुआ है तो मैं उसको भी ठीक करने के लिए तैयार हूं, लेकिन we should not allow anyone to divide us anymore, any further. हमारा सबसे बड़ा वीकनेस हमारा अहंकार, और हमारा सबसे बड़ा ताकत हमारा प्यार है। हमारा सबसे बड़ा कमजोरी लालच है, और हमारा सबसे बड़ा ताकत हमारा ईमानदारी है। मुझे अपने लोगों को कुछ देना है और मैं वो दूंगा। किसी को मार के नहीं दूंगा, किसी के घर को जला के नहीं दूंगा, किसी को गाली दे के नहीं दूंगा, लेकिन अपने लोगों को उठाकर मैं कुछ देना चाहता हूँ। वंस अगेन आप लोग यहाँ में आए हैं हौशम भोजन के लिए।
मैंने आपको एक लंबा सा, आप लोग बोल रहे हैं महाराज ज्ञान बांट रहा है, कोई लोग कुछ और बोलेगा, लेकिन यहाँ में मीडिया भी है, अपना संग जाति है, डोंगर है, कॉकपिन है, अपना कॉक त्रिपुरा है, चीनी खोरांग है, सब लोग हैं, और भी है, यूट्यूब चैनल्स है, हापिंग टीवी है, अभी इतना बन गया। हम लोग हमेशा एक संग ही कम्पीट कर रहा है, अगरतला में कोई एक होकर कम्पीट नहीं कर रहा। पॉलिटिकली भी हम लोग एडीसी में एक संग ही फाइट करते हैं, एक संघ के खिलाफ फाइट करते हैं। हम लोग कभी भी बड़ा पिक्चर नहीं देखते। एक दिन आएगा जब त्रिपुरा का मुख्यमंत्री भी तिपरासा बनेगा, लेकिन वो दिन तब आएगा जब तिपरासा अपना थिंकिंग को बदलेगा, जब महाराज भी बोलेगा आई एम सॉरी, कहीं में गलती हुआ है तो आई एम सॉरी। मेरा दिल कहता है, और अगर आप लोग भी कहते हैं, मेरा दिल कहता है कि हमको अपना सब जो हमसे रूठ के चले भी गए, जो हमसे नाराज होके भी चले गए, जिन लोगों ने मेरा कान भरा, उन सब के संग हाथ मिलाकर हमको अपना लोगों को कुछ देना चाहिए। अगर हमने वो दिया तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर हमने अपना ही बारे सोचा, कुछ नहीं मिलेगा। We have leaders here, Mewal is here, we have Okras there, we have Vijay Ramphal there, we have MLAs here. You all are only as important till the time you are in power. One day power very soon can be taken away by you. But the power that I have with my people, that of in the heart, जो दिल में है पावर, उसको छीनने के लिए उसको छीनने के लिए आप सीबीआई से नहीं छीन सकता है, आप ईडी से नहीं छीन सकता है, आप पुलिस से नहीं छीन सकता है। उसको छीनने के लिए आपको मुझे मारना पड़ा। और मैं एक ही पोस्ट चाहता हूं आपके दिल के। ये मैं बोलकर आपको सबको अगेन औषम भोजन में आप लोग आए हैं। काउंसिल ऑफ तिपरासा हौदा, दिलीप बाबू कहाँ है, दिलीप देव वर्मा कहाँ है? आप लोग प्लीज डेट फिक्स कीजिए, मैं भी बात करता हूँ। और आप लोगों का मीटिंग दिल्ली में एक रिप्रेजेंटेशन आप लोगों का, आप लोग इंडिपेंडेंटली जाइए, अकेला मिलिए, मुझे भी नहीं मिलना है, आप लोग अकेला जाके मिलिए, राइटिंग में अपना डिमांड दीजिए। हम भी अपने तरफ से आपका जो डिमांड है राइटिंग में देंगे और कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि आई एग्री अगरतला में भी आपका एक बेस होना चाहिए। खुमुलुंग में जगह मिला है, ऑफिस खोलने के लिए भी कुछ पैसा मिलना चाहिए, मैं अग्री करता हूँ और इसके लिए मैं भी आपके लिए फाइट करूँगा। बेलाई नो हम बाय, थैंक यू।